Hello students, welcome to my channel. This is the last class of increasing and decreasing function, that is monotonicity. In this class I will discuss some more problems from your CHSE book and CBSE book. Previously I have done some questions. You should practice those questions. Today I am taking some different questions. Question number 1. In all questions, you have to find out the intervals where following functions are increasing and decreasing. So y equal to sin x plus cos x. X belongs to 0 to 2 pi. In this question, student, we are given a trigonometric function, that is sin x plus cos x. Generally, in trigonometric functions, a particular domain will be given due to its periodic nature. Otherwise, we will have infinite number of intervals where the function will be increasing and decreasing. Here, the domain is given x belongs to 0 to 2 pi. What is the question? In which interval this function is increasing and in which interval this function is decreasing, that we have to decide. The first step, dy by dx, or you can say f dash x. The derivative of this is cos x minus sin x. Okay. Then we are finding critical point. क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे? For critical points, dy by dx will be equal to 0. Hence we are searching the value of x for which this will be 0. Means cos x minus sin x equal to 0. Now how to solve this equation, student? This is a trigonometric equation. You see how I am doing. You bring minus sin x this side, then दोनों साइड से cos x डिवाइड करो, तो ये 1 बनेगा, ये tan x बनेगा. This is the method to solve this equation. tan x equal to 1. यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे. तो कैसे फाइंड करेंगे? जो डोमेन दिया है 0 to 2 pi, in that domain 0 to 2 pi means all 4 quadrants. This is 0, this is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2, this is 2 pi. This you know from 11th trigonometry. तो बताओ tan x equal to 1, मतलब tan x is positive. tan x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. In particular, we need tan x equal to 1. We know student pi by 4 एंगल जब हम लेंगे pi by 4, तो tan pi by 4 1 होता है. ये तो फ्रीक्वेंटली यूज भी होता है pi by 4. और एक एंगल कहाँ से आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट से आएगा. कैसे आएगा? देखो, ये जो लाइन मैंने खींचा इसको ही इसे बढ़ा दो. As you see, this angle is pi. पहले कितना था? pi by 4. तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा? pi plus pi by 4. ये पहले pi by 4 था, and this much is pi. So if you find it, this is found to be 5 pi by 4. Students, 0 to 2 pi के बीच में अगर हम x का वैल्यू pi by 4 एंड 5 pi by 4 लेंगे तो tan x 1 बनेगा, जो कि तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट है. तो देयर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट. अंडरस्टूड? और एक मैं हिंट दे रहा हूँ, अगर कभी भी एक सिचुएशन आएगा tan x इक्वल टू -1, माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में. यू कैन नोट इट. सेकेंड क्वार्टर में 3 pi by 4 पर एंगल 3 pi by 4 एंगल पर tan x -1 होगा, और 7 pi by 4 ये दो एंगल में tan x -1 होता है, ये दो एंगल पर tan x 1 होता है. ठीक है? सो यू कैन नोट इट. अगर tan x इक्वल टू -1 कभी भी तुम फेस करोगे तो x लिखेंगे हम 3 pi by 4, 7 pi by 4. नोट करके रखो. ऐसे भी सिचुएशन आ सकता है ड्यूरिंग फाइंडिंग आउट क्रिटिकल पॉइंट. तो
तो अभी तो हमारा क्वेश्चन ये है tan x इक्वल टू 1, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5/4 5/4 आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स। देन हम क्या करते थे, साइन स्कीम ऑफ f(x), साइन स्कीम ऑफ d/dx या फिर f(x) कुछ भी हम लिख सकते हैं। साइन स्कीम क्या होगा, नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन क्या है, डोमेन, डोमेन है तुम्हारा 0 to 2π, 0 पर क्लोज है, 2π पर भी क्लोज है, तो दोनों एंड पॉइंट इंक्लूडेड है, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2π आएगा। देन बीच में क्रिटिकल पॉइंट लोकेट करो, पहले 5/4 आएगा, फिर 5/4 आएगा। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम CHSE book Elements of Mathematics. Then we get three interval students, 0 to 5/4, 5/4 to 5/4, 5/4 to 2π। हर इंटरवल में हम d/dx का साइन चेक करेंगे। 0 to 5/4 में एंगल हम लेंगे, एंगल लेना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो d/dx है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है, तो x की जगह पर हम एंगल डालेंगे। तो 0 to 5/4 में 30 डिग्री आएगा। अगर मैं 30 डिग्री पुट करूँगा d/dx में, cos 30 √3/2 sin 30 हाफ, उसका डिफरेंस पॉजिटिव आएगा स्टूडेंट्स। रफ में तुम चेक करो, पॉजिटिव आएगा, फिर आगे नेगेटिव आएगा, फिर आगे पॉजिटिव आएगा। जनरली ऑल्टरनेट साइन आता है, अदरवाइज यू कैन टेक ए पॉइंट फ्रॉम 5/4 to 5/4, 45 डिग्री से ये कितना होगा 225 डिग्री, बीच में 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री डाल के देखो, cos 90 0 sin 91, ये नेगेटिव बन रहा है, फिर लास्ट इंटरवल में पॉजिटिव बनेगा। साइन स्कीम करने के बाद हम लिखेंगे hence y is increasing, y जो है f(x) वही है, इन जहाँ जहाँ पॉजिटिव लिखा है वहाँ इंक्रीज होगा, तो ये दो इंटरवल लिखना पड़ेगा। इन योर बुक द इंटरवल्स आर गिवन इन ओपन इंटरवल बट इट शुड बी क्लोज इंटरवल, 0 to 5/4, एंड बुक में दिया है यूनियन, बट हमें एंड लिखना चाहिए। अगर एग्जाम में तुम यूनियन लिखोगे भी तो मार्क मिलेगा, बट द प्रॉपर आंसर इज एंड। फिर ये इंटरवल 5/4 से 2π, ठीक है, एंड डिक्रीजिंग इन जहाँ नेगेटिव है वहाँ डिक्रीजिंग होगा 5/4 to 5/4, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन अगर यहाँ पर माइनस होगा तो tan x -1 आएगा, ऐसा हम करके जाएंगे। तो वहाँ से तुम्हारा दो क्रिटिकल पॉइंट अभी मैंने बताया था, 3/4 7/4 आएगा, फिर ऐसे डोमेन लाइन के ऊपर वो क्रिटिकल पॉइंट लोकेट करेंगे, फिर साइन डिसाइड करेंगे। So that question I am not doing. This is the first question student in today's class. Next question, again I am taking a trigonometric question. Y is equal to question number 2, sin 2x minus cos 2x, comma x belongs to 0 to 2π। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में जो मैंने लिया था, यहाँ पर भी x था, यहाँ पर भी x था, बीच में प्लस था, इंटरवल यही था, बट यहाँ पर 2x है। तो देखो कैसे इसका आंसर होगा। डोमेन अगेन दिया है 0 to 2π, पहले हम फाइंड आउट करेंगे d/dx, sin 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x, फिर माइनस cos 2x का माइनस आएगा तो 2 sin 2x, यहाँ तक ठीक है। हम चाहे तो 2 कॉमन ले जाएंगे, sin 2x प्लस cos 2x ऐसे लिख पाएंगे। फिर फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस में हम ऐसे करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं, x का वही वैल्यू जहाँ पर तुम्हारा डेरिवेटिव 0 होगा। इसलिए मैं लिख रहा हूँ dx इक्वल टू 0 मीन्स 2 टाइम्स sin 2x प्लस cos 2x इक्वल टू 0। इस 2 का तो कुछ काम नहीं, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा क्या, sin 2x प्लस cos 2x इक्वल टू 0। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फ्रेंड, sin 2x इक्वल टू माइनस cos 2x, फिर दोनों साइड में cos 2x डिवाइड करेंगे तो tan 2x इक्वल टू -1।
दोनों साइड में cos x डिवाइड करो। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ से हम 2x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आया है tan 2x इक्वल टू -1, ओके। बट डोमेन क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x दिया है 0 to 2 पाई। वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो क्या, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, ये है तुम्हारा डोमेन ऑफ द फंक्शन। बट यहाँ पर क्योंकि ये जो इक्वेशन आया है 2x के फॉर्म में आया है, इसीलिए हम 2x का वैल्यू निकालेंगे। 2x का वैल्यू कितना होगा, 4 पाई, यहाँ पर होगा, यहाँ पर 0 होगा। 0 to 2 पाई था तुम्हारा x, तो 2x अभी क्या होगा, 0 to 4 पाई। 0 to 4 पाई मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन देन अनदर रोटेशन स्टूडेंट्स। इसे हम 2 रोटेशन करेंगे तो 0 to 4 पाई आएगा। अंडरस्टूड। अभी दिक्कत क्या है, tan कौन से एंगल में -1 होगा, अभी तो मैंने बताया था, थर्ड को सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल मैंने क्या बताया था, 3 पाई बाई 4। फिर जब हम पहला रोटेशन लेंगे 0 to 2 पाई में जब घूमेंगे तब 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4 आएगा। दिस टू आर द पॉसिबल एंगल इन 0 to 2 पाई। बट हमारा अभी डोमेन क्या है, 0 to 4 पाई, मतलब 2x का रेंज क्या है, 0 to 4 पाई। तो 0 to 4 पाई में अगर हम देखेंगे, पहले हम 0 to 2 पाई देखेंगे, फिर 2 पाई से 4 पाई देखेंगे। ये दोनों एंगल 0 to 2 पाई में आएंगे। देन 2 पाई टू 4 पाई में कैसा आएगा स्टूडेंट, वेरी सिंपल, ये दो एंगल में 2 पाई ऐड कर दो। जब हम 2 पाई से फिर से शुरू करेंगे, फिर से 3 पाई बाई 4 जाना पड़ेगा, क्योंकि हम 2 पाई से कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए 2 पाई यहाँ ऐड कर दो, यहाँ 2 पाई ऐड कर दो। मतलब 2x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, 3 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, ये बनेगा 4 to the 8 9, 8 3 11 पाई बाई 4, 4 to the 8 7 15 पाई बाई। बट बी केयरफुल स्टूडेंट, दीज आर द वैल्यूज ऑफ 2x। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, 2 डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 3 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8, 11 पाई बाई 8, 15 पाई बाई 8। तो जो इससे पिछला क्वेश्चन था वहाँ तुम्हारा एंगल में x था, सो इसलिए 2 क्रिटिकल पॉइंट आ रहा था। बट क्योंकि यहाँ पर 2x है और डोमेन 0 to 2 पाई में दिया हुआ है, इसीलिए वी आर गेटिंग 4 क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, साइन स्कीम ऑफ dy by dx। अगेन सेम प्रोसेस, डोमेन है तुम्हारा 0 to 2 पाई इंक्लूडिंग 0 and 2 पाई, क्योंकि क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल दिया है। फिर वी विल लोकेट दिस क्रिटिकल पॉइंट। सबसे छोटा 3 पाई बाई 8 है, फिर आएगा 7 पाई बाई 8, देन वी विल गेट 11 पाई बाई 8, देन वी विल गेट 15 पाई बाई 8। If you observe, there are 1 2 3 4 5 sub intervals। Students, you do only one thing, जो पहला इंटरवल है इसमें डेरिवेटिव्स का साइन क्या आएगा उसको करेक्टली निकालो, पर अदर इंटरवल्स विल पुट अल्टरनेट साइन। 0 to 3 पाई बाई 8 में 3 पाई बाई 8 इज एग्जैक्टली 67.5 डिग्री, तो 0 to 67.5 डिग्री में 15 डिग्री आएगा। 15 डिग्री मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि हमारा डेरिवेटिव ये है। तो इसमें अगर मैं एक टेस्ट पॉइंट लूंगा 15 डिग्री, वो लेकर मैं टेस्ट एक्स या फिर डी वाई बाई एक्स में डालूंगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। देखो फिर 2 × 15 30, sin 30 हाफ, cos 30 √3/2, बीच में प्लस है, ओवरऑल इट इज पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव, फिर पुट अल्टरनेट साइन। नो नीड टू चेक स्टूडेंट, यू कैन डायरेक्टली पुट अल्टरनेट साइन। यहाँ तक ठीक है। जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ इंक्रीजिंग होगा, तो कैसे लिखेंगे, हैंस y इज इंक्रीजिंग इन, पहला वाला इंटरवल ये है 0 to 3 पाई बाई 8 एंड
देन ये वाला इंटरवल पर तुम्हारे बुक में इनलाइन की फॉर्म में दिया है 7/8 to 11/8 एंड फाइनली ये 15/8 to 2π। अगर हम यूनियन साइन भी ले जाएंगे तो भी बोर्ड में आंसर नहीं कैंसिल कुछ होगा, बट थियोरेटिकली वी शुड हैव एंड। देन हम लिखेंगे डिक्रीजिंग का इंटरवल। डिक्रीजिंग मतलब जहाँ जहाँ तुम्हारा डी/x नेगेटिव है वहाँ डिक्रीजिंग होगा, एंड y is decreasing in यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, 3/8 to 7/8 एंड यहाँ पर नेगेटिव है 11/8 to 15/8। सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चंस आर वेरी इजी। फंक्शन दिया होगा, डोमेन दिया होगा, फंक्शन को हम डेरिवेटिव करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे इक्वल टू 0 करके, देन उसको डोमेन लाइन में लोकेट करेंगे, देन साइन स्कीम चेक करेंगे। जहाँ जहाँ तुम्हारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा वहाँ इंक्रीजिंग होगा, एंड जहाँ डेरिवेटिव नेगेटिव होगा वहाँ डिक्रीजिंग होगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी तुम्हारे एलिमेंट्स बुक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ये पीस वाइज फंक्शन है x² + 1 x ≤ -3, फिर दिया है x³ - 8x + 13 x > -3। तो अगर कोई पूछेगा स्टूडेंट्स इसका डोमेन क्या है, क्योंकि जो फंक्शन डिफाइन है इसका दो पीस है, ये एक पीस है, ये एक पीस है। ये पीस हम कब लेंगे x ≤ -3 या फिर -3 से छोटा। मतलब इसमें क्या कवर हो रहा है, -∞ to -3, एंड सेकंड डेफिनेशन इज टेकन व्हेन x is greater than -3, मतलब -3 से इंफिनिटी तक। तो डोमेन इज R, क्लियरली डोमेन इज R, इस फंक्शन का डोमेन R है। लेकिन इजीली ऑब्जर्व, यहाँ पर भी पॉलिनोमियल, यहाँ पर भी पॉलिनोमियल, तो डोमेन तो R होना चाहिए। तो अगर ऐसे पीसवाइज फंक्शन होगा तब भी हम वैसे ही करेंगे। पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy/dx या फिर f(x). देखो कैसे होगा इसका डेरिवेटिव। इस इंटरवल में डेरिवेटिव होगा 2x, x ≤ -3। ये भी इसका डेरिवेटिव कितना होगा 3x² - 8 अंडर द कंडीशन x > -3। देखो सर कैसे करेंगे। वी विल कंसीडर टू केसेस फॉर x फर्स्ट क्या दिया है <= -3। तुम्हारा dy/dx क्या है, आई एम कंसीडरिंग द फर्स्ट पार्ट। x <= -3 में dy/dx है 2x। स्टूडेंट्स केयरफुली देखो, कंडीशन है x <= -3, तो मतलब x का हर वैल्यू नेगेटिव है, -3 या फिर -3 से छोटा, मतलब x इज नेगेटिव। दिस इंप्लाइज x इज नेगेटिव। तो dy/dx क्या होगा, जब x नेगेटिव होगा ये 2x भी नेगेटिव होगा, तो <0 होगा। तो गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अंडर दिस केस या फिर अंडर दिस कंडीशन डेरिवेटिव तो तुम्हारा 2x है, बट 2x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? दैट वी कैन इजीली जस्टिफाई बिकॉज x इज नेगेटिव। -3 या फिर -3 से छोटा जितने सारे वैल्यूज ऑफ x होगा सबके सब नेगेटिव होगा, इसीलिए 2x भी नेगेटिव होगा। तो मतलब हम क्या बोलेंगे अभी, सो y इज डिक्रीजिंग in -∞ to -3। मतलब ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में क्योंकि तुम्हारा डेरिवेटिव नेगेटिव है इसलिए तुम्हारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अंडरस्टूड? सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर x <= -3 में x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
क्या है, डी बाई डी एक्स है 3x² माइनस 8। इसको थोड़ा मैं ऐसे लिखता हूँ, x² माइनस 8/3। ठीक है, इसको हम फैक्टराइज भी कर पाएंगे, x प्लस रूट 8/3 इंटू x माइनस रूट 8/3। इसको मान लो रूट 8/3 का स्क्वायर, देन अप्लाई a² माइनस b²। क्लियरली critical points are x equal to minus root 8/3 comma root 8/3। Are you getting or not? ये जो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया है, एक क्रिटिकल पॉइंट पॉजिटिव है, तो जब हम ये कंडीशन ले रहे हैं कि x ग्रेटर देन -3 होगा, तो ये नंबर तो ऑब्वियसली -3 से बड़ा है। ये क्या होगा, 8/3 कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो उसका रूट ओवर 1 पॉइंट समथिंग होगा, -1 पॉइंट समथिंग भी इस इंटरवल में लाई करेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, साइन स्कीम ऑफ डी ओवर डी एक्स। बी केयरफुल स्टूडेंट, यहाँ क्या होगा, ये इंफिनिटी है, -3 से बड़ा है x का वैल्यू, सो अंडर दिस कंडीशन हमारा डोमेन लाइन ये होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन -3 से हम शुरू किए हैं, तो जब हम साइन स्कीम करेंगे उसका डोमेन हम लेंगे -3 से इंफिनिटी। पहला आएगा माइनस रूट 8/3, फिर आएगा प्लस रूट 8/3। ठीक है, तो इसमें हम साइन चेक करेंगे, -3 से सबसे इजी होगा ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो बीच में 0 आएगा, 0 को लेकर f' में डालो, ये तुम्हारा f' या फिर dy बाई dx। अगर मैं 0 यहाँ डालूंगा, ये नेगेटिव आ रहा है स्टूडेंट, ये नेगेटिव मतलब इसके अगल बगल में ऑपोजिट साइन होगा। गेटिंग माय पॉइंट, पॉजिटिव मतलब यहाँ इंक्रीज होगा, यहाँ इंक्रीज होगा, और बीच का इंटरवल में नेगेटिव है, मतलब यहाँ डिक्रीजिंग होगा। सो नाउ आई एम इरेजिंग, नाउ आई एम राइटिंग हियर। इसके बाद हम लिखेंगे, सो y इज इंक्रीजिंग इन, जहाँ पॉजिटिव है, -3 से -√8/3, ये ओपन ये क्लोज। ये ओपन क्यों है, क्योंकि जब हम ये डिस्कशन कर रहे थे x का वैल्यू -3 से बड़ा है, -3 भी नहीं होगा, एंड लास्ट इंटरवल √8/3 से इंफिनिटी। स्टूडेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम्हारे बुक में ये सब इंटरवल ओपन में ही दिया है, बट यू कैन टेक क्लोज, बट बीच में यूनियन भी दिया है, उसमें एंड होना चाहिए। अगर तुम यूनियन लिखोगे भी तो चलेगा, एंड इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, एंड डिक्रीजिंग इन -√8/3 से √8/3 इंटरवल, क्लोज इंटरवल। सो फाइनली आंसर क्या होगा स्टूडेंट, जब मैंने पहला कंडीशन लिया था उस इंटरवल में क्या हुआ था, डिक्रीजिंग। जब मैंने दूसरा कंडीशन लिया या फिर दूसरा डेफिनेशन लिया, वहाँ पर इंक्रीजिंग भी आ रहा है, डिक्रीजिंग भी आ रहा है। सो फाइनली हम आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये दोनों मिलाकर लिखेंगे। फाइनली ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ है। फाइनली y is increasing in, इंक्रीजिंग का दो ही इंटरवल है, -3 से -√8/3 एंड √8/3 से इंफिनिटी। डिक्रीजिंग में हम इन दोनों को क्लब कर देंगे, एंड डिक्रीजिंग इन फर्स्ट वन बोल रहे हैं -∞ to -3, एंड बट तुम्हारे बुक में आंसर में सबके सब इंटरवल ओपन में दिया है और एंड की जगह पर यूनियन दिया है। वैसे लिखोगे भी तो मार्क मिलेगा, बट थियोरेटिकली एंड होना चाहिए। ये एक इंटरवल है,
माइनस रूट 8/3 to root 8/. Understood? This is a very good question. Next question, students. Next question है. So till now I have explained 3 questions. और एक question है. Y is equal to 10x minus 4 times x minus 2. इसमें भी डोमेन दिया है x belongs to minus pi/2 to pi/2 open interval. क्योंकि क्वेश्चन में 10x है तो pi/2 minus pi/2 वो डोमेन में नहीं आएगा. pi/2 minus pi/2 पर 10x इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी होता है, मतलब अनडिफाइंड होता है. माइनस pi/2 to pi/2 मतलब समझ रहे हो? ये थोड़ा समझ रहा हूँ. जब ये 0 हम ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये pi/2 होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल माइनस pi/2 होगा. फर्स्ट यू कैच दिस पॉइंट. माइनस pi/2 to pi/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. कितना? माइनस pi/2 to pi/2. मेथड सेम है. पहले हम dy/dx निकालेंगे. इसका क्या होगा? sec² x minus 4 into x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0. ठीक है. तो इसका हम ऐसे लिखेंगे sec x plus 2 into sec x minus 2. देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूँ. For critical points dy/dx equal to 0 means sec x plus 2 into sec x minus 2 equal to 0 implies sec x equal to minus 2 or sec x equal to plus 2. Students, जो पहला वाला है ये रिजेक्टेड होगा. सुनो, क्यों रिजेक्टेड होगा? डोमेन दिया है माइनस pi/2 to pi/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट. इसके अंदर ही हमें देखना पड़ेगा. एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में sec x कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए रिजेक्टेड हो गया. बट sec x 2 हो सकता है. तो x का कौन सा वैल्यू में sec x 2 होगा? देखो फ्रेंड, sec x अगर समझ में नहीं आ रहा है, इसको cos x में कन्वर्ट कर दो. cos x इक्वल टू हाफ. तो x क्या होगा? अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे pi/3 एंगल पर sec x हाफ हो रहा है तो एक आएगा pi/3. जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे मतलब माइनस pi/2 to 0, यही एंगल इसी डायरेक्शन में ड्रॉ कर दो. इसको नाम दे दो माइनस pi/3. ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है. तो इस डोमेन में देयर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट, माइनस pi/3 प्लस pi/3. अंडरस्टूड? तो फिर हम करेंगे साइन स्कीम ऑफ dy/dx. ये कैसे होगा? देखो, नंबर लाइन लेंगे माइनस pi/2, ये है pi/2. फिर क्रिटिकल पॉइंट पहले आएगा माइनस pi/3, फिर आएगा pi/3. तो 3 इंटरवल बन रहा है. तो हम चेक करेंगे कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव. सबसे इजी है यहाँ चेक करना. माइनस pi/3 to pi/3 में एक एंगल आएगा 0 आएगा ना, 0 आएगा. उसको लेकर हम dy/dx में डाल देंगे, मतलब यहाँ डाल देंगे साइन स्कीम ऑफ dy/dx. जब मैं x का वैल्यू 0 लूँगा, टेस्ट पॉइंट 0 लूँगा, sec 0 1 होता है, 1 minus 4 नेगेटिव होता है. तो यहाँ नेगेटिव होगा. इस साइड पॉजिटिव आएगा, इस साइड पॉजिटिव आएगा. इसका अगल बगल में ऑपोजिट साइन होगा. इसके राइट में पॉजिटिव, इसके लेफ्ट में पॉजिटिव. जहाँ पॉजिटिव इंक्रीजिंग, जहाँ नेगेटिव डिक्रीजिंग. ठीक है. तो ये भी बना दो. फिर आप अभी हम लिख पाएंगे कि कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, कंक्लूजन में लिखेंगे. बट बी केयरफुल, डोमेन में माइनस pi/2 pi/2 पर ओपन इंटरवल है. Hence y is increasing in पहला इंटरवल में इंक्रीजिंग माइनस pi/2 to माइनस pi/3. यहाँ क्लोज हम ले पाएंगे. एंड लास्ट इंटरवल pi/3 to pi/2 पर होता है.
and decreasing in this interval minus 5/3 to plus 5/3। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी 4 मार्क में आ सकता है, डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। Next question, student, prove that the function e to the power x by x to the power p is strictly increasing for x greater than p greater than 0। ये भी तुम्हारा एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का ही क्वेश्चन है। Prove that the function e to the power x by x to the power p is strictly increasing for x greater than p greater than 0। ऐसे क्वेश्चन हमेशा इजी होता है, जो फंक्शन दिया है उसको हम y मानेंगे, लेट y is equal to e to the power x by x to the power p। बोल रहे हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इन दिस डोमेन, मतलब हमें दिखाना पड़ेगा कि ये इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा और कुछ नहीं। dx निकालेंगे, नीचे आएगा x की पावर p का स्क्वायर, ऊपर आएगा x की पावर p into e की पावर x माइनस e की पावर x into x की पावर p का डेरिवेटिव, कैलकुलेट करो p into x to the power p minus 1। ठीक है, इफ यू सी ये जो x पावर p है, यहाँ जो x पावर p minus 1 है, कम वाला पावर कॉमन में आएगा, यहाँ ex है, यहाँ ex है, ex भी कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या, x की पावर p से जब मैंने x की पावर p minus 1 कॉमन ले तो x बचेगा, फिर minus 1 बचेगा, डिवाइडेड x की पावर 2p। ये डेरिवेटिव करके थोड़ा सिंपलीफाई कर दो, सॉरी ये p होगा, यहाँ पर p है ना। क्वेश्चन का भी पढ़ो, क्वेश्चन में दिया है कि गिवन क्या है, x is greater than p is greater than 0। इसका मतलब क्या है, मान लो ये तुम्हारा 0 है, p 0 से बड़ा है, मतलब p यहाँ कहाँ पर होगा, p 0 से बड़ा है, x p से बड़ा है तो x यहाँ कहाँ पर होगा, सोच रहे हो। तो 0p x में सबसे बड़ा x बीच में p है, अगर कोई पूछेगा x माइनस p क्या होगा, x को x greater than p greater than 0, so dy by dx मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ग्रेटर देन 0, मैं समझा रहा हूँ, सुनो, क्योंकि x p से बड़ा है तो ऑब्वियसली x माइनस p ग्रेटर देन 0 होगा। ये है तुम्हारा x, ये है तुम्हारा p, तो x माइनस p ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, x पावर 2p, x पॉजिटिव p भी पॉजिटिव, तो x पावर 2p भी पॉजिटिव होगा। गेटिंग माय पॉइंट, e पावर x ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, वैसे x पावर p minus 1 भी हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि x पॉजिटिव p भी पॉजिटिव। सो यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट, इसलिए गिवन है फॉर x greater than p greater than 0 we have d over d greater than 0। ऐसे स्टेटमेंट लिखना होगा टू गेट द मार्क। सो क्योंकि इस फंक्शन के लिए डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया, therefore y is increasing, y मतलब जो भी फंक्शन दिया है, नॉट इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखो, क्योंकि डेरिवेटिव 0 भी नहीं होगा, 0 से बड़ा ही होगा। y is strictly increasing for x greater than p greater than 0। इस क्वेश्चन में कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डेरिवेटिव करके थोड़ा सिंपलीफाई करो, फिर हर टर्म का साइन निकालो, हर टर्म का साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, प्रूव दैट ये तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी 2 sin x plus tan x greater than equal to 3x for all
x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2। ये 6 मार्क क्वेश्चन है, 4 मार्क में भी आ सकता है, 6 मार्क में भी आ सकता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली इनइक्वालिटी है ये, हमें ये इनइक्वालिटी प्रूव करना है। इनइक्वालिटी प्रूफ कैसे होगा? यूजिंग मोनोटोनिसिटी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सुनो स्टेप सुनो। पहले हमको एक फंक्शन एज्यूम करना होगा, हमको एक फंक्शन लेना होगा। कैसे लेंगे? इस 3x को इधर लाएंगे, तो 2 sin x plus 10x minus 3x। सो वी हैव टू प्रूव। तो प्रूव हम क्या करेंगे कि f of x is greater than equal to 0। जब मैंने 3x को इधर ले लिया, इधर 0 बचेगा, सो fx मैंने इसको ले लिया, इसको और इसको इधर ला कर, तो प्रूफ क्या करना है? fx is greater than equal to 0। देखो कैसे प्रूफ होगा। तो पहले हम f dash x निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव 2 cos x plus x square x minus 3। अभी बताओ, जो डोमेन दिया है क्वेश्चन में 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 समझ रहे हो? 0 to पाई बाई 2, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव, sec x पॉजिटिव, -3 है। तो ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है हम बता नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सुनो, ये जो 2 cos x लिखा है उसको मैं लिख रहा हूँ cos x plus cos x plus x square x minus 3। क्योंकि x तुम्हारा 0 to पाई बाई 2 इंटरवल में है, सिंस x belongs to 0 to पाई बाई 2, cos x, cos x, sec square x आर पॉजिटिव। ये तीनों नंबर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हमें वी हैव ए रिलेशन am greater than equal to gm। ये रिलेशन में यूज कर रहा हूँ, देखो क्या फायदा होगा। मैं m greater than equal to gm कहाँ पर लगाऊंगा? ये तीन क्वांटिटी पर लगाऊंगा। तो m का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड नंबर ऑफ नंबर्स। ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स टू द पावर 1/3। अगर 3 नंबर का हम gm निकालेंगे, 3 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में 1/3 लिखेंगे। लेफ्ट साइड क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? 2 cos x plus x square x by 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर यहाँ देखोगे cos x sec square x कैंसिल हो जाएगा। कैसे? इसका हम लिखेंगे 1/cos square x, तो ऊपर भी cos square x है ना, तो राइट साइड 1 बन रहा है। तो 2 cos x plus sec square x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इस 3 को उधर ले जाओ, देखो फायदा क्या होगा? implies 2 cos x plus x square x minus 3 greater than equal to 0। मतलब हमें अभी पता चल गया कि तुम्हारा जो f dash x था वही एक्सप्रेशन एग्जैक्टली यहाँ पर है। देखो, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। 1 और 2 को अगर तुम कंपेयर करोगे, यही एक्सप्रेशन तुम्हारा यहाँ पर लिखा है, एंड इसको मैंने प्रूफ किया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब f dash x is greater than equal to 0। तो अभी लिखेंगे from 1 and 2, from 1 and 2, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ from 1 and 2, नहीं तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो एंड लेटर यू कैन राइट, आई एम जस्ट रिमूविंग। तभी देखो इसका कुछ काम नहीं है अभी। from 1 and 2, from 1 and 2 f dash x is greater than equal to 0। This implies fx is increasing in 0 to पाई बाई 2। इस तरह के क्वेश्चन में आइदर फंक्शन इंक्रीजिंग प्रूव होगा, नहीं तो डिक्रीजिंग प्रूव होगा स्टूडेंट्स, रिमेंबर। तो क्योंकि f dash x greater than equal to 0 आया है, so fx is increasing in 0 to पाई बाई 2। एक बात सुनो, अगर मैं रफली एक स्केच बनाऊंगा, ये तुम्हारा x एक्सिस, ये तुम्हारा y एक्सिस, ये 0 है। ओरिजिन मतलब वहां पर x 0 है। 0 to पाई बाई 2 मान लो यहाँ पर है, x एक्सिस के ऊपर मैंने ये डोमेन को खींचा 0 to पाई बाई 2। 0 to पाई बाई 2 में प्रूफ क्या हुआ? fx is increasing। तो 0 से शुरू होगा ग्राफ, यहाँ से शुरू होगा, पाई बाई 2 तक आएगा ग्राफ। अगर इंक्रीजिंग है तो रफली ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा, इंक्रीजिंग, तो ऊपर जाना चाहिए।
तो 0 पर फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। स्टूडेंट देखो fx में अगर मैं x का वैल्यू 0 रखूंगा, ये 0 ये 0 ये 0, तो 0 पर 0 है, बट 0 क्योंकि ओपन इंटरवल है, 0 नहीं है डोमेन में, यहाँ पर एक होलो सर्किल दे दो। π/2 पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, उस पर भी एक होलो सर्किल दे दो, क्योंकि π/2 डोमेन में नहीं है। तो रफ स्केच विल बी लाइक दिस, अप्रोक्सीमेटली ग्राफ विल बी लाइक दिस, नॉट एग्जैक्ट स्केच। तो क्योंकि इंक्रीजिंग है तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस। अभी सुनो, 0 to π/2 में एक पॉइंट ले जाओ x। सुनो कैसे, x पर जो आउटपुट आएगा और 0 पर जो आउटपुट है, इन दोनों में x पर जो आउटपुट है वो बड़ा होगा। अंडरस्टूड? इम्प्लाइज नाउ फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल टू साइन है किंतु डोमेन में 0 नहीं है, बट वी कैन राइट लाइक दिस। अगर x का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, देन f of x ग्रेटर देन इक्वल टू f of 0 होगा। इस ग्राफ को देखो, x पर जो आउटपुट आएगा मतलब फंक्शन का वैल्यू आएगा वो बड़ा होगा कंपेयर टू 0। अगर हम ऐसे सिचुएशन में होंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन f of x ग्रेटर देन इक्वल टू f of 0। अभी डाल देंगे fx क्या है हमारा, ये तुम्हारा fx 2 sin x plus tan x minus 3x ग्रेटर देन इक्वल f of 0। f of 0 में तो कैलकुलेशन किया था, यहाँ पर हम 0 डालेंगे, 2 sin 0 0 tan 0 0 minus 3 into 0 0। देखो almost we got the proof, implies 2 sin x plus tan x minus 3x greater than equal to 0, that is 2 sin x plus tan x greater than equal to 3x for all x belongs to 0 to π/2। ठीक है, this completes the topic increasing and decreasing functions. In the next video we will discuss maxima and minima. Till then, goodbye. Thanks for watching my channel.